we are going to solve question number 7 of exercise 14.3 again, and the topic is frequency polygon. We are given data regarding runs scored by two teams, team A and team B, in the first 60 balls. For example, 1 to 6 balls. First to 6th ball, team A scored 2 runs and team B scored 5 runs. Then 7th to 12th ball, team A scored 1 run and team B scored 6 runs. Then 13th to 18th ball, 8 runs, 2 runs. 19 to 24 balls, 9 runs and team B scored 10 runs. Likewise, the data is present here. Now, by using this data, we will draw a frequency polygon. Again, here class size is same, 1 to 6. It means 5 is the class size, 7 plus 5 is 12, 13 plus 5 is 18, 19 plus 5 is 24. That is class size is 5 here, with the limitation that data is again not continuous. Here upper limit is 6, whereas lower limit is 7, then 12, 13, 18, 19. It means upper limit of first class interval is not equal to lower limit of next class interval. It means data is not continuous. जब data continuous नहीं है, we need to draw frequency polygon, या फिर हमें histogram draw करना है. Then we need to convert the data into continuous form. Now how to convert the data into continuous form? पिछले एक वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया कि डेटा को continuous कैसे करना है. एक बार फिर डिस्कस कर लें. Subtract 0.5 from lower limit and add 0.5 to upper limit. That is, अगर मैं यहाँ से 0.5 subtract करता हूँ, 1 minus 0.5, it will be 0.5. यहाँ 0.5 add करता हूँ, 6 plus 0.5, that will be 6.5. So मैंने कॉलम यहाँ पे लिखा था स्पेस थोड़ा सा सेव करने के लिए. अब मैं यहाँ लिखूंगा इसको 0.5 to 6.5 फर्स्ट इंटरवल. 7 to 12 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, इट विल बी 7 minus 0.5, दैट इज 6.5 to 12 plus 0.5, 12.5. 13 to 18, 13 minus 0.5, 12.5 to 18.5. बिल्कुल सिंपल है. We can convert the data into continuous form. Next, 19, it will become 18.5 to 24.5, 25, 24.5 to 30.5, 30.5 to 35.5, 35.5 to this one, 30.5 to 35.5, 36.5, 36.5 to यहाँ ऐड करेंगे 42.5, 42.5 to 48.5, then 48.5 to 54.5. After that 54.5 to 59.5. एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे. लास्ट इंटरवल इज 55.5 to 60.5. कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 55.55 we will subtract 0.5, it will be 54.5. 54.5. This one is 60. When we add 0.5 here, it will become 60.5. So this is the data. अब data continuous हो गया. Continuous means here upper limit is 6.5, here lower limit is 6.5. Continuous data 12.5, 12.5, 18.5, 18.5. So हमने डेटा को यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. इस कॉलम को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. नाउ वी विल ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हाउ टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. एक बार फिर से डिस्कस करेंगे. यहाँ पे y axis, then x axis, x axis and y axis. This one is origin. Now team A,
team B. These are runs scored by two teams. These are runs scored by two teams. अगर यहाँ पे मैं देखूँ runs are from 1 to 10 again up to 10 here. It means हम यहाँ पे एक बॉक्स को 1 लिख सकते हैं, वेरी कन्वीनियंट स्केल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are runs scored. दोनों टीम्स के रन्स y एक्सिस पे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी को हम मोस्टली अलोंग y एक्सिस ही लेते हैं ग्राफ की शेप को ध्यान में रख के. एंड 0.52. नाउ अगेन वी नीड टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हियर. और जब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा करना है, पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर वी हैव टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्लास मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ टू कैलकुलेट क्लास मार्क्स हियर. तो हमें यहाँ पे एक कॉलम रखना होता है क्लास मार्क्स का. यहाँ स्पेस कम है, दैट्स व्हाई मैं क्लास मार्क्स के कॉलम को यहाँ पे नहीं रखूंगा. स्टिल वी नीड क्लास मार्क्स. सो क्लास मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें एक कॉलम बनाना है बीच में, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0.5 प्लस 6.5, इट विल बी 7. 7 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 3.5. सो जब भी हम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कोई. इट विल बी 3.5, then 12.5 plus 6.5. 12 plus 6 is 18, 18 plus 1 19, 19 divided by 2 9.5. 18 plus 12 30, 30 plus 1 31 divided by 2 15.5. बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे. 3.5 plus 6 9.5 plus 6 15.5. 6 6 ऐड होता जाएगा. 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 and 57.5. चेक कर सकते हैं हम. 60 plus 54, this one is 114 plus 1 115. 115 divided by 2, that will be 57.5. बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम यहाँ से. नाउ फर्स्टली हम फ्रीक्वेंसी टीम ए की फ्रीक्वेंसीज लेंगे. क्लास मार्क्स, दीज आर द क्लास मार्क्स. यहाँ टेबल को नाम देना ऊपर क्लास मार्क्स. टीम बी को इग्नोर करेंगे अभी. 3.5 से स्टार्ट करेंगे. सपोज आई मेंशन हियर 3.5. नाउ नेक्स्ट स्टेप्स को लेके चलना है. इक्वल डिस्टेंस पे अगर मैं प्लस 6 प्लस करता हूँ, इट विल बी 9.5 प्लस 6 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5. लास्ट वन इज 57.5. तो एक पॉइंट इससे आगे लेके चलेंगे. 63.5. फर्स्टली x is 3.5, y is 2. x 3.5, y 2. This one is the point. x 3.5, y 2. x 9.5, y 1. 9.5 and 1. 9.5 यहाँ से 1 के सामने. 15.5 and 8. 15.5, 8 बिल्कुल ऊपर जाएंगे. This one is 8. 21.5 and 9. 21.5, 9, 8 के ऊपर रहेगा. This one is 9. This one is 21.5, 27.5 and 4. 27.5, this one 4. This one is 4.
33.5 and 5, 33.5, 5. ग्राफ शीट पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. 39.5 and 6 हमने बिल्कुल ध्यान से लेके चलना है. यहाँ स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन नोटबुक पे ऐसा नहीं होगा. Now 39.5 and 6, 39.5 and 6, 45.5 and 10, 45.5, 10. Upward, this one is 10. 51.5 and 6, 51.5 and 6. This one is 6. Last one is 57.5 and 2. 57.5 and 2. Now we will join. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बिल्कुल इसी ऑर्डर में चलेंगे. रनिंग हैंड में ज्वाइन करेंगे. इसके बाद ये पॉइंट है. टीम ए. नाउ व्हाट अबाउट टीम बी? टीम बी 3.5 and 5. X 3.5, Y is 5. This one 9.5, 6. 9.5 and 6. 15.5, 2. 15.5, 2. 21.5, 10. X 21.5, Y is 10. 27.5, 5. X 27.5 and Y is 5. 33.5 and 6. 33.5 and 6. 39.5 and 3. X 39.5, Y 3. 45.5 and 4. 45.5, Y 4. 51.5, 8. X 51.5 and Y is 8. This one is 8. थोड़ा सा नीचे आऊँगा. Last one 57.5 and 10. 57.5, 10. This one. Now we will join. We will start from the first point. This one is first. अब मैं डॉटेड लाइन में ज्वाइन करूंगा. डॉटेड लाइन. रनिंग हैंड में चल गए. पिछले वीडियो में भी हमने कहा था स्केल लेके इसको ज्वाइन नहीं करना है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट पॉइंट को पहले ज्वाइन कर दिया, इसको बाद में ज्वाइन करेंगे. दिस वन. एक बात का और हमें ध्यान रखना है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हमने एंड कहाँ तक करना है. दिस वन इज 57.5. हमने इसको लास्ट पॉइंट पे लाके एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कर देना है. इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया एक्स एक्सिस पे और इसको भी बिल्कुल एक्स एक्सिस पे लाके ज्वाइन करेंगे. इनिशियल पॉइंट एक्सिस को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, दैट इज अलोंग नेगेटिव एक्सिस. और अगर मैं पॉइंट्स को देखता हूँ, इतना स्पेस है तो इतना होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली पिछले पॉइंट पे. दिस वन इज 3.5. अगर -3.5 लेके चलता हूँ या फिर दिस वन इज 9.5, दोनों के बीच स्पेस देखेंगे. जितना इस साइड है इतना इस साइड होगा, तो इसको भी एक पॉइंट पीछे ज्वाइन करेंगे एंड सेम विल बी ज्वाइंड हियर. एक पॉइंट पीछे ले जाना है, यहाँ जाके ज्वाइन करेंगे. नाउ this one is section A and section A, sorry, this one is team A. Team A and dotted one is team B. We can represent index also. बॉक्स के टॉप पे हम लिख सकते हैं इंडेक्स.
team A, team B, team A, this one, and team B is dotted one. So this is all about question number 7, how to draw a frequency polygon. But if the intervals are not continuous, firstly we need to make the intervals continuous, that is continuous data में इसको convert करेंगे. After that we can draw frequency polygon like this. Thank you.